children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, light, sound and force. Let's learn about what gives us light, how shadows are formed, different types of sounds. The sun is a natural source of light. We cannot see anything in a dark room. We need light to see in the dark. Likewise, sound is also a form of energy. It helps us to hear. A force is referred to as a pull or push. It can move an object. सन आपको पता है नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है ना. हम किसी भी डार्क रूम में क्या देख सकते हैं? हम बिल्कुल नहीं देख सकते. हमें लाइट की ज़रूरत पड़ती है. इसी तरह से आपका जो साउंड है वो आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है. ये हमें सुनने में हेल्प करता है. फोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज़ को पुल या पुश करना, और ये किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है? मूव कर सकता है. लाइट, an object that gives us light is called luminous object. Light is a form of energy. कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देता है उसे कहते हैं luminous object. And light आपका form of energy है. An object that doesn't give us light is called a non-luminous object. We see non-luminous objects when light falls on them. और जो ऑब्जेक्ट हमें लाइट नहीं देते उन्हें हम कहते हैं non-luminous object. और हम non-luminous object को कब देखते हैं? जब लाइट उस पर पड़ती है. Do you know Moon is a non-luminous object as it shines with the help of sunlight. आपका मून एक non-luminous object है, बट ये शाइन कैसे करता है? क्योंकि ये सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. Shadow. Light always travels in a straight line. It passes through some objects called transparent objects. A shadow is a dark image that appears behind the object. The shadow is formed on the side opposite to the source of light. चिल्ड्रन ऑलवेज रिमेंबर, लाइट जो है ना हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है. ये कुछ ऑब्जेक्ट्स के थ्रू पास करती है जिसे कहते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. एक शेडो, एक डार्क इमेज बनती है ऑब्जेक्ट के बिहाइंड. तो शेडो हमेशा बनेगी जैसे आपका सोर्स ऑफ जो लाइट आ रहा है उसके ऑपोजिट साइड में. Activity time. Switch off the light of the room. Now place a big ball on the table. Throw light from a torch on the ball. Notice what happens. You will see that a dark image appears behind the ball. This is the shadow of the ball. देखिए आप रूम की ना सारी लाइट्स को ऑफ कर दीजिए. एक बड़ी सी बॉल को टेबल पे रखना है. अब आपको एक टॉर्च की हेल्प से उस बॉल पे लाइट डालनी है. अब क्या आप नोटिस करेंगे? एक डार्क इमेज अपीयर होगी उस बॉल के बिहाइंड. तो वो क्या है? उस बॉल की शेडो. Shadows are formed when an object blocks the path of light. You can see your dark image on the ground when you stand outside during the daytime. The size of the shadow changes from time to time during the day due to change in the position of the sun. Shadows कब बनती है? देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट है ना लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देता है तो आपको एक डार्क इमेज ग्राउंड पे नज़र आती है, राइट? जैसे कि आप खड़े होते हैं कभी दिन के टाइम पे, तो जो साइज़ होता है शेडो का वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है. यानी आपका दिन में चेंज होगा, देन आपका इवनिंग में अलग नज़र आएगी. तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द सन. देखिए जैसे मॉर्निंग में आपकी क्या होगी? शेडो लॉन्ग होगी, इवनिंग में भी लॉन्ग होगी, बट नून में शॉर्ट होती है क्योंकि नून में क्या होता है? सन जस्ट हमारे ऊपर होता है. Do you know a solar eclipse occurs when the moon blocks the light of the sun? The shadow of the moon falls on the earth and the sun cannot be seen. Solar eclipse कब होता है आपका? देखिए मून जो है वो सन की लाइट को ब्लॉक कर देता है, फिर जो शेडो होती है मून की वो अर्थ पे पड़ती है और सन नहीं दिखाई देता है. Sound. Sound is produced when we talk. We hear sounds of different kinds round the clock. The ringing of phone, the honking of horns, the chirping of birds, etc. Different types of sounds. Almost everything in our surrounding makes sound. If you food in a steel plate with a spoon, it makes sound. Sound देखिए जब कभी हम बात करते हैं साउंड प्रोड्यूस होती है. हम रोज़ाना डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड सुनते हैं. आपका फ़ोन रिंग कर रहा है, आपका अलार्म बज रहा है, या हॉर्न्स की हॉन्किंग है, बर्ड्स चॉप कर रही हैं, राइट? हर दिन हमने अपने सराउंडिंग में हम साउंड क्रिएट करते हैं, बनाते हैं. जैसे आप खाना खाते हैं, राइट? किसी स्टील प्लेट में स्पून की हेल्प से, तब भी साउंड होती है ना? इवन यू टेक आउट वाटर फ्रॉम कंटेनर इट मेक साउंड. और यहाँ तक कि आप किसी कंटेनर में से पानी निकालते हैं तब भी उसमें से साउंड बनती है. टाइप्स ऑफ साउंड. वी हेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड. सम साउंड्स आर लाउड, दैट इज ringing of the school bell. Some sounds are soft, example whisper. Some sounds are pleasant, example music. अब देखिए साउंड में डिफरेंट तरह की होती है. कुछ लाउड होती है जैसे स्कूल में जो बेल बजती है ना. कुछ सॉफ्ट होती है जैसे विस्पर, हम कान में किसी के बोलते हैं धीरे धीरे से, है ना. कुछ प्लेजेंट होती हैं साउंड जैसे कि म्यूजिक. Some sounds are unpleasant, example the continuous honking of a vehicle.
और कुछ साउंड आपकी अनप्लेजेंट है। अगर सोचिए कोई भी व्हीकल जो है वो कंटिन्यूसली हॉन्क कर रहा है तो कितना इरिटेटिंग होता है, तो दैट लुक्स क्वाइट अनप्लेजेंट। We like soft and pleasant sound. We do not like loud and unpleasant sound. देखिए pleasant sound, soft sound या pleasant sound है वो तो हमें पसंद आती है, but loud sound या unpleasant sound हम बिल्कुल भी नहीं पसंद करते। Noise. Unpleasant loud sounds are called noise. If all of you in the class start talking at the same time, it is called noise. Very loud sounds are not good for your ears. They may damage your ears and make you deaf. We can reduce noise by speaking softly and playing TV and music system in low volume. अनप्लेजेंट लाउड साउंड्स को कहा जाता है नॉइस। सोचिए अगर क्लास में आप एक ही टाइम पे ना सारे बच्चे बोलना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाता है, क्लास में शोर हो जाता है। तो बहुत लाउड साउंड हमारे कानों के लिए अच्छे नहीं है, हमारे कान को डैमेज कर सकते हैं, हमें बहरा बना सकते हैं। तो इसीलिए आपको सॉफ्टली बात करनी चाहिए, नॉइस को रिड्यूस करना चाहिए। जैसे टीवी है या म्यूजिक सिस्टम है उसे लो वॉल्यूम में आपको चलाना चाहिए। बी सेफ, नॉइज फ्रॉम लाउड स्पीकर, डीजे एंड हॉर्न्स कैन डैमेज योर आइज। देखिए ये जो नॉइजेज है ना जो आपके लाउड स्पीकर या डीजेज या हॉर्न से आते हैं ये आपकी ईयर्स को डैमेज कर सकते हैं। फोर्स, एवरी डे यू यूज फोर्स टू मेक योर लाइफ ईजियर। You kick the football, hit the cricket ball with bat by force. The ball cannot move on its own. It needs a push. हर दिन हम अपनी लाइफ में फोर्स का यूज़ करते हैं अपनी लाइफ को ईजियर बनाने के लिए। जैसे कि आप फुटबॉल को किक करते हैं, क्रिकेट बॉल को हिट करते हैं बैट से फोर्स के थ्रू। बॉल क्या अपने आप से मूव करती है? नहीं, उसको पुश करना पड़ता है। अ चाइल्ड पुशेस द स्विंग टू मेक इट मूव। The wind pulls a kite high into the sky. These pushes and pulls are called forces. They can make things move. देखिए एक चाइल्ड जो है स्विंग को पुश करता है जिससे मूव करता है। विंड जो है पुल करती है काइट को हाई इनटू द स्काई। तो ये पुशेस एंड पुल्स इन्हें कहा जाता है फोर्सेस, एंड ये क्या करते हैं? थिंग्स को मूव करते हैं। फोर्स कैन ऑल्सो स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, लाइक यू कैन स्टॉप अ रनिंग बॉल विद योर फीट। अच्छा, फोर्स की वजह से ना क्या होता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि रनिंग बॉल है, आप उसको रोक दीजिए अपने फीट से तो क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा, है ना। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि आप डोर है उसको पुश या पुल करते हैं, है ना। कार्ट को पुश किया जा रहा है, फोर्स का इसमें यूज़ किया जा रहा है। फोर्स से शेप भी किसी ऑब्जेक्ट की चेंज हो जाती है, राइट। एंड देन फोर्स को ट्रॉली को पुल करने के लिए यूज़ किया जा रहा है, ओके। इसके अलावा एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। एक टॉय को पुल करने के लिए भी फोर्स का यूज़ किया जा रहा है। We use very little force to move little things. We use a lot of force to move heavy things. When we move something by applying force, we do work. We need energy to do work. देखिए हम कोई छोटी चीज़ों को अगर हम उनको मूव कराना तो हम बहुत थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे, लेकिन कोई हेवी ऑब्जेक्ट होगा तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं और कोई चीज़ मूव होती है तो इसका मतलब हमने क्या किया? वर्क किया। और हमें काम करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। Let's remember, luminous objects give out light. We can see objects in a dark room in the presence of light. Sounds are of different kinds: soft, loud, pleasant, and unpleasant. A shadow is formed when an object blocks the path of light. When we push or pull to move something, we use a force. We need energy to do work. Luminous object light give out करते हैं, और हम किसी भी डार्क रूम में ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं अगर वहाँ पे लाइट प्रेजेंट है तो। एंड साउंड आपकी डिफरेंट तरह की होती है। शेडो आपकी कब बनती है? जब एक ऑब्जेक्ट लाइट के पाथ को ब्लॉक करता है। जब किसी भी चीज़ को हम पुश या पुल करते हैं उसको मूव करने के लिए तो हम फोर्स का यूज़ करते हैं। एंड काम करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की। चिल्ड्रन, आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा, एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।